يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اسی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و دیبا ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بے مقصد نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے پیدا کرنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، بزرگان دین، اسلام کے غیور نوجوان ساتھیوں، ہونہار پیارے عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے ماہ شعبان کی فضیلت اور شب برات کی حقیقت۔ معزز حاضرین، ماہ شعبان اسلامی مہینوں میں سے رجب کے بعد آنے والا مہینہ ہے اور رمضان سے پہلے آنے والا مہینہ ہے۔ یہ جو شعبان کا لفظ ہے اسے اس لیے شعبان کہا جاتا ہے کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں سمی شعبان لتشعبہم فی طلب المیاہ، اہل عرب اس مہینے میں پانی کو تلاش کرنے کے لیے بکھر جاتے تھے، ادھر ادھر اپنے گھروں سے بکھر کر نکل جایا کرتے تھے، اس لیے اس مہینے کو شعبان کہا گیا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ رجب کا مہینہ چونکہ حرمت والا مہینہ تھا، جس میں اللہ نے لڑائی جھگڑا کرنے سے منع کیا تھا اور اس کا احترام کرنے کا حکم دیا تھا، تو لہذا رجب کا مہینہ ختم ہوتے ہی شعبان کے مہینے میں اہل عرب جنگ و جدال کے لیے باہر نکلتے تھے، بکھر جایا کرتے تھے، اس لیے اس کا نام شعبان رکھا گیا۔ تو میرے بھائیوں، شریعت اسلامیہ میں شعبان کی کیا فضیلت ہے؟ ہم اور آپ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ شعبان کی کیا فضیلت بیان کی ہے یا ان کا کیا عمل اس مہینے میں تھا، تو ہمیں اور آپ کو اس مہینے کے متعلق صرف ایک فضیلت والا عمل معلوم ہوتا ہے، اور وہ عمل کثرت سے نفل روزے رکھنے کا عمل ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے مسلمانوں میں جو بھی اعمال پھیلے ہوئے ہیں یا جو بھی اس مہینے میں خصوصاً 15ویں شعبان کو کرتے ہیں، یہ تمام کا تمام بدعات پر مشتمل ہے، جس کا حکم نہ اللہ نے دیا ہے، جس کا حکم نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے کہا، ماہ شعبان کی فضیلت صرف اس سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ رمضان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب اور پسند روزے رکھنا اگر کسی مہینے میں تھا تو وہ شعبان کے مہینے میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے اور ساتھ ہی رمضان کے مہینے کو بھی ملاتے تھے جو فرض روزے رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں
लम यकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूम शहरन अक्सर मिन शाबान फ़इन्नहु कान यसूम शाबान कुल्लहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी महीने में कसरत से रोजे नहीं रखते थे मगर शाबान के महीने में, यहाँ तक के मुकम्मल या कसरत से जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में रोजा रखा करते थे। इसी तरह उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों के मुताल्लिक सवाल किया, तो उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, काना यसूमु हत्ता नक़ूल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे यहाँ तक के क़द सामा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह रोज़ा रखते थे कि हम ये समझते थे कि अब अल्लाह के नबी रोज़ा नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखना छोड़ देते थे, यहाँ तक कि हम समझते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब कभी रोज़ा नहीं रखेंगे। इसके अलावा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, वलम अरहु साइमन मिन शहर क़त्तुन, कि मैंने नहीं देखा कि किसी भी महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते हो मगर शाबान के महीने में, यहाँ तक के मुकम्मल शाबान के रोज़ा रखा करते थे या कसरत से शाबान के रोज़ा रखा करते थे। तो मेरे भाइयों, अहले इल्म ने इन तमाम अहादीस को जमा करके ये बात जिक्र की है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से रोज़ा रखा करते थे। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह या इसकी हिकमत ये बयान की गई है। हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि इस महीने में कसरत से क्यों रोज़ा रखते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ज़ाका शहरुन तुग़फ़लुन नासु फ़ीहि अन्हु बैन रजब व रमज़ान, के इस महीने में लोग गफलत बरतते हैं। लोग क्या करते हैं? गफलत बरतते हैं, चूंकि ये रमजान और रजब के दरमियान का महीना है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, वहुव शहरुन तुरफ़अ फ़ीहिल अअमाल इला रब्बिल आलमीन, और ये शाबान का महीना इसलिए जो है इसमें जो है मैं कसरत से रोजा रखता हूँ कि इस महीने में किए जाने वाले आमाल अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश किए जाते हैं। व उहिब्बु अन युरफ़अ अमली व अना साइमुन, और मुझे ये बात पसंद है कि मेरे जब आमाल अल्लाह के पास पहुंचाए जाएं तो मैं उस वक्त रोजे से रहूं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से जो है रोजा रखा करते थे। तो मेरे भाइयों, इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो वजूहात बयान की हैं। पहली वजह क्या है कि शाबान के महीने में लोग गफलत बरतते हैं, भाई आने वाला महीना रमजान का महीना है, किसी भी तरह इबादत करेंगे। हमारा भी ये माहौल है, हमारा भी ऐसा ही माहौल बन गया है। अभी एक आध दिन पहले मैं हमारे एक नौजवान भाई से कह रहा था, नमाजी जो है नहीं आ रहे हैं, इतना बड़ा जलसा हुआ, किसी के अंदर जरा भी फिक्र पैदा नहीं हुई, थोड़ा भी जज्बा अमल करने का नहीं आया। क्या फायदा, हमारे लोग सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते, बड़ी फिक्र होती है, नमाजों तक तो नहीं आते हैं। तो कहने लगे, मौलवी साहब अब आपको बुलाने की भी जरूरत नहीं है, अब आपको फोन करने की भी जरूरत नहीं है, अब आता रमजान वो खुद जो है नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। तो ये माहौल कौन बनाए हैं? हम लोग खुद बनाए हैं कि रमजान आया इबादत करना है, उससे पहले उसके बाद इबादत नहीं करना है। तो मेरे भाइयों याद रखें, ये जिहालत है, ये गफलत है, इसलिए हमें और आपको इससे बचना चाहिए और ऐसी सोच रखने से दूर रहना चाहिए। तो बहरहाल ये बात मैं जो है जिक्र करना जरूरी समझ रहा था। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, लोग इस महीने में गफलत बरतते हैं, इसलिए मैं जो है कसरत से इस महीने में रोजा रखता हूँ। इसी तरह मेरे भाइयों, शाबान के महीने में जब कसरत से रोजे रखा करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15वीं शाबान के बाद रोजे रखने से मना किए हैं। वजह क्या है कि भाई 15वीं शाबान के बाद भी अगर रोजा रखेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, आने वाला महीना फर्ज रोजों का महीना होगा, तो वहां कहीं इंसान सुस्त ना हो जाए, कमजोर ना हो जाए। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा बक़िया निस्फ़ु मिन शाबान
फला तसूमू, कि जब आधा शाबान बाकी रहे, यानी 15 शाबान गुजर जाए और 15 दिन बाकी रहे तो तुम रोजा ना रखो। इसका मतलब ये नहीं है कि हरगिज रोजा ना रखो, बल्कि पीर का रोजा, जुमेरात का रोजा या इसके अलावा और भी जो साल भर आप नफिल रोजे रखते थे, अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। इसी तरह इस महीने में एक अमल हम ये भी करें कि गुज़िश्ता साल रमज़ान में जो रोज़े बीमारी की वजह से, सफ़र की वजह से या हमारी माएँ और बहनें उनके मखसूस अय्याम की वजह से रोज़ा नहीं रख सकी है, तो इस महीने में उन रोज़ों को मुकम्मल करें। जैसा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती है, काना यकूनु अलैया सौम मिन रमज़ान फमा अस्ततीउ अन अक़दिया इल्ला फ़ी शाबान, कि मैं गुज़िश्ता रमज़ान के जो रोज़े मुझसे छूट गए थे तो साल भर अगर मुझे वो रखने की ताकत ना मिली, वक्त ना मिला, तो मैं शाबान के महीने में उन रोज़ों की क़ज़ा कर लिया करती थी। तो मेरे भाइयों, इस शाबान की फजीलत में या शाबान के रोज़ों के मुताल्लिक मैंने आप लोगों के सामने बयान किया। अब आइए मैं अपने मौजू के दूसरे जुज़ की तरफ जाता हूँ, और वो दूसरा जुज़ है शबे बारात की हकीकत। शब कहते हैं रात को, बारात कहते हैं बेजारगी को। किसे कहते हैं बारात? बेजारगी को। तो गोया हमारे नामो निहाद मुसलमान जिस रात को ईद की तरह मना रहे हैं, जिस रात को सवाब वाली रात समझ रहे हैं, जिस रात को इबादत वाली रात समझ रहे हैं, इसका माना ही बेजारगी वाली रात है। तो बहरहाल तो मेरे भाइयों, शबे बारात की हकीकत ये है, या हमारे मुसलमानों में बाज़ मुसलमान ये अकीदा रखते हैं, ये गलत फहमी रखते हैं कि इस महीने की 15वीं तारीख को, जिसे ये लोग शबे बारात कहते हैं, इस रात लोगों के फैसले लिखे जाते हैं, लोगों की तकदीरें लिखी जाती हैं, रोज़ी तकसीम होती है, इंसान की मौत और हयात जो है इस रात में लिखी जाती है। तो ये शबे बारात मनाने वालों की गलत फहमी है, और इसके लिए दलील देते हुए कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, कि बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया है मुबारक रात में, बेशक हम जो है इससे डराने वाले हैं। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं, फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि इस रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से बड़े बड़े फैसले लिखे जाते हैं। अभी इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि हमने कुरान को नाजिल किया है मुबारक रात में, और इस रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है बड़े बड़े फैसले करता है, या अल्लाह के हुक्म से बड़े बड़े फैसले लिखे जाते हैं। तो मेरे भाइयों, इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन किराम जिक्र करते हुए कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को कब नाजिल किया है। हम में से हर मुसलमान, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, उससे अगर सवाल किया जाए कि कुरान कब नाजिल हुआ है, तो वो कहेगा कि रमज़ान के महीने में। किस महीने में नाजिल हुआ है? रमज़ान के महीने में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, कि रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया है। इसी तरह एक और मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारक इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया है लैलतुल क़द्र में। और वह लैलतुल क़द्र कब है? रमज़ान के महीने में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह क़द्र में कहा, फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से, अल्लाह की इजाज़त से लोगों के फैसले लिखे जाते हैं। तो हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात मानेंगे क्या ये इन नामो निहाद मुसलमानों की बात मानेंगे जो ये दावा करते हैं कि फैसले जो है 15वीं शाबान को लिखे जाते हैं, जिसे शबे बारात कहते हैं। एक तरफ इनका दावा है शबे बारात में फैसले लिखे जाते हैं, एक तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कहता है कि कुरान को रमज़ान में लैलतुल क़द्र में नाजिल किया गया और उसी लैलतुल क़द्र में फैसले लिखे जाते हैं। तो जो लोग इन नामो निहाद मुसलमानों के दावों को मानते हैं वो शबे बारात मनाए, और जो लोग अल्लाह की बात को मानते हैं वो लोग शबे बारात ना मनाए। इसी तरह मेरे भाइयों, शबे बारात की हकीकत या शबे बारात के मुतालिक एक गलत फहमी ये है कि इसमें हमारे मुसलमानों के बाज़ लोग कब्रिस्तान की ज़ियारत करते हैं। क्या करते हैं? कब्रिस्तान की ज़ियारत करते हैं। इससे 1 या 2 दिन पहले कब्रों को जो है
پختہ کرتے ہیں، قبرستان کو پاک و صاف کرتے ہیں، لیپا توپی کرتے ہیں، اور مغرب کے بعد یا شام کے وقت میں تمام خاندان والے مل کر قبرستان کی زیارت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے دلیل بھی پیش کرتے ہیں۔ ہم اور آپ پریشان ہو جائیں گے، بھائی وہ بھی تو دلیل پیش کر رہے ہیں، لیکن وہ جو دلیل پیش کی جاتی ہے وہ دلیل موضوع من گھڑت روایت ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سوئے ہوئے تھے، اچانک اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان گئے، وہاں جا کر انہوں نے دعا کی، واپس لوٹے تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں کیوں گئے تھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ تبارک و تعالی ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لاكثر الناس من شعر غنم كلب، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کو آسمانی دنیا پر آتا ہے اور تمام لوگوں کو یا بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے جسم پر جو بال ہیں ان بالوں سے زیادہ تعداد کے لوگوں کو اللہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ یہ روایت ذکر کرتے ہیں شب برات منانے والے کہ اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اترتا ہے، جبکہ امام البانی رحمہ اللہ علیہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، موضوع قرار دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہا۔ اس کے برعکس صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سوئے ہوئے تھے، اچانک گھر سے جو ہے باہر نکل گئے، میں یہ سمجھی کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری بیوی کے پاس نہ گئے ہو۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان گئے ہیں، وہاں جا کر دعا کر رہے ہیں، دعا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ رہے تھے، میں نے دیکھا اور فوراً دوڑتے ہوئے چلی آئی اور اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا کہ میری سانس پھول رہی ہے، میری سانس پھول رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عائشہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سچ سچ بتا، اگر تو نہیں بتائے گی تو اللہ تبارک و تعالی مجھے بتائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سمجھ رہی تھی کہ کہیں تم دوسری بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہو، اس لیے میں آپ کا پیچھا کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے پر ہاتھ دباتے ہوئے کہا کہ اے عائشہ کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تیرے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ میں بقیع قبرستان اس لیے گیا تھا کیونکہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، وہ گھر میں داخل نہ ہو سکے کسی وجہ سے، انہوں نے مجھے باہر بلایا۔ جب میں باہر گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو قبرستان جانے کا حکم دیا ہے اور قبرستان میں جو لوگ مدفون ہیں ان کی مغفرت کی دعا کرنے کا آپ کو حکم دیا ہے، اس لیے میں اٹھ کر جو ہے قبرستان گیا اور ان کے لیے جو ہے جا کر دعا کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم قبرستان جائیں تو کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وانا انشاءاللہ بکم للاحقون۔ سلام ہے تم پر اے قبر والو، اے مومنو، اے مسلمانو، اللہ رب العالمین رحم کرے تم پر اور تمہارے بعد آنے والوں پر، اور بے شک ہم بھی تم سے آ کر ملنے والے ہیں۔ یہاں تک جو ہے حدیث ذکر کی گئی، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ جو مکمل صحیح روایت ہے اس میں کہیں 15 شعبان کا ذکر آیا، اس میں کہیں شب بارات کا جس کے متعلق ہمارے نام و نہاد مسلمان تیار ہو کر قبرستان جاتے ہیں، کہیں اس کا ذکر آیا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا تھا وہاں جا کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو لہذا ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو رشتہ دار دوست و احباب گزر گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو سال بھر کبھی بھی جائیں، صبح جائیں، دوپہر جائیں، شام جائیں، خاص کر کسی دن کو مقرر کرنا یہ بدعت ہے۔ لہذا اس سے ہمیں اور آپ کو
बचना चाहिए। तो मेरे भाइयों, जैसा कि मैं कह रहा था कि शब बारात 15वीं शाबान को जो कब्रिस्तान जाते हैं, न इसका हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है और न सहाबाए किराम कभी 15वीं शाबान को कब्रिस्तान जाकर जियारत करते थे। और एक बात हम भी देखते हैं, उस रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले गए थे और हमारे ये नामो निहाद मुसलमान क्या करते हैं, पूरी फैमिली को लेकर वहां जाते हैं और जाते भी हैं तो दुआ करते हैं या नहीं करते मालूम नहीं, कब्रिस्तान को सजाते हैं। गुज़िश्ता साल बाज़ तस्वीर और वीडियोस देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि गैर मुस्लिम भी वैसा नहीं करते जैसे हमारे मुसलमान कर रहे हैं। देखा ना आपने भी वीडियोस और तस्वीर में लाइटें लगाई गई हैं, फूल बिछाए गए हैं, फल फ्रूट रखे गए हैं, कितने शर्म की बात है। गैर मुस्लिम भी नहीं करते वैसा अकीदा हमारे मुसलमान का हो गया है। तो बहरहाल मेरे भाइयों, शब बारात की हकीकत ये है कि इस रात के मुतालिक एक गलत फहमी ये है कि इस रात तमाम मोहल्ले के लोग नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जमा होते हैं और उस रात एक मखसूस नमाज पढ़ी जाती है जिसे सलाते अलफिया कहा जाता है, यानी 1000 या 100 रकात वाली नमाज पढ़ी जाती है, जिसमें सूरह फातिहा के बाद हर रकात में सूरह इखलास 10 मरतबा पढ़ा जाता है। और इसके मुतालिक एक मौजू मनगढ़ंत रिवायत बयान की जाती है। रिवायत क्या है? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी 15वीं शाबान को, जो जिसे शबे बारात लोग कहते हैं, इस रात 100 रकात पढ़ता है और सूरह फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करता है तो नमाज के बाद उसकी जो हाजत होगी वो पूरी हो जाएगी, जो हाजत होगी वो पूरी हो जाएगी। और अगर वो बदबख्त है तो नेक लोगों में लिखा जाएगा और आने वाले 1 साल के गुनाह उसके माफ हो जाएंगे। अब ये हदीस हमारे लोगों के सामने जिक्र की जाए बहुत खुश हो जाते हैं, चलो भाई साल भर नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक रात जाएंगे 100 रकात पढ़ेंगे और जो है अपने आप को जो है आने वाले साल के गुनाह भी माफ कराएंगे और इसी तरीके से अपनी तमाम हाजतें भी पूरी करेंगे। सोचते हैं या नहीं सोचते? तो लिहाजा ये हदीस जिसके मुताल्लिक मुहद्दिसीन किराम जिक्र करते हुए कहते हैं, इमाम इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह अलैह, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह अलैह, इमाम शौकानी रहमहुल्लाह अलैह, मुल्ला अली क़ारी हनफी रहमहुल्लाह अलैह और इसी तरीके से दीगर और भी मुहद्दिसीन कहते हैं कि ये मौजू मनगढ़ंत रिवायत है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। तो लिहाजा ऐसी हदीसें, ऐसे आमाल जिसका हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया, हमारे नामो निहाद मुसलमान कर रहे हैं। इसी तरह एक और जो है रिवायत जिक्र की जाती है कि जो आदमी 15वीं शाबान को, जिसे ये लोग शबे बारात कहते हैं, 12 रकात नमाज पढ़ते हैं। कितनी? 12 रकात नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उसे 20 मकबूल हज्जों और 20 साल रोजा रखने का अज्र व सवाब देता है। मतलब ये लोग जेब से निकाल कर अज्र व सवाब दे रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान नहीं किया, क्या कहते हैं? 20 साल के कबूल होने वाले हज्जों का सवाब देता है और जो है 20 साल रोजा रखने का अज्र व सवाब देता है। अस्तगफिरुल्लाह। इमाम सुयूती रहमहुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये नमाज का या इस नमाज की जो जिक्र किया जाता है ये मौजू और मनगढ़ंत है, जिसका हुक्म या जिसकी सही हदीस की किसी भी जो है सही अहादीस की किताब में मौजूद नहीं है। इसी तरह मेरे भाइयों, एक अमल ये कहते हैं 15वीं शाबान की रात जागते हैं रात भर और दूसरे दिन रोजा रखते हैं, ये भी बिदात है। मुहद्दिसीन किराम जिक्र करते हुए कहते हैं कि 15वीं शाबान को शबे बारात को क़ियामुल लैल करना और उसके दूसरे दिन रोजा रखना, ये जो अमल हमारे मुसलमान करते हैं ये बिदात है, बिदात है, बिदात है। यानी दीन में नया काम जो है किया गया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। इसी तरह 15वीं शाबान के मुतालिक जो भी फजीलतें बयान करते हैं, जैसा कि मैंने आपके सामने बयान किया कि इस रात को लैलतुल क़द्र की तरह समझते हैं या इस रात को जो है फैसले वाली रात समझते हैं। अब देखें हमारे जो असलाफ थे किस कदर जो है सख्त थे इसके मुतालिक। इमाम अबू बकर तरतुशी रहिमहुल्लाह यानी बयान करते हैं, ज़ैद इब्न असलम रहिमहुल्लाह यानी जो ताबई है वो अपनी किताब में नकल करते हैं कि हमने अपने मशाइख, अपने उलमा से 15वीं शाबान के मुतालिक कोई फजीलत नहीं सुनी है। यहाँ तक के इमाम इब्ने मुलैका रहिमहुल्लाह ने को बताया गया कि एक शख्स है जिसका नाम जियाद है, जो इस 15वीं शाबान की रात को शबे बारात समझता है या लैलतुल क़द्र की तरह फजीलत वाली रात समझता है। तो इमाम इब्ने मुलैका रहिमहुल्लाह ने कहते हैं कि अगर मैं
उस आदमी से ये बात सुन लेता कि वो 15वीं शाबान को या शबी बारात को लैलतुल कद्र वाली रात कहता है, तो मैं डंडा उठाकर उसे मारता और जो है उसे सजा देता। ये हमारे असलाफ का अमल था। आज हमारे लोग करते हैं, भाई करने दो, उनका अमल उनके साथ, हमारा अमल हमारे साथ, यानी जो कर रहे हैं उन्हें करने देते हैं, जबकि उन्हें समझाएं ये बिदात है, ये दीन का हिस्सा नहीं है। हमें चाहिए कि हम इन बिदातों से बचते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें। इसी तरह मेरे भाइयों, इस रात के मुतालिक 15वीं शाबान के मुतालिक मौजू और मनगढ़ंत रिवायात जिक्र करते हुए कहा जाता है कि इस रात अल्लाह तबारक व तआला आसमानी दुनिया पर आता है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ 15वीं शाबान नहीं बल्कि सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह तबारक व तआला साल भर 365 दिन रात के आखिरी हिस्से में आसमानी दुनिया पर आता है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, यंजिलु रब्बुना तबारक व तआला कुल्ला लैलतिन इला समाई दुनिया हिना यबका सुलुसल लैल, कि अल्लाह तबारक व तआला हर रात जब आखिरी हिस्सा होता है, फजर से पहले जो टाइम होता है, रात का आखिरी हिस्सा आसमानी दुनिया पर आता है। फयक़ूलु, और कहता है, मन यदऊनी फअस्तजीब लहू, कोई है दुआ करने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं। मन यसअलुनी फअअतियहू, है कोई मांगने वाला, सवाल करने वाला कि मैं उसे अता करूं। मन यस्तगफिरुनी फअगफिर लहू, है कोई मगफिरत तलब करने वाला कि मैं उसकी मगफिरत करूं। फला यज़ालु कज़ालिका हत्ता युदी फजर, यहाँ तक के अल्लाह तबारक व तआला बार बार बंदों से पुकार कर कह रहा होता है जब तक के फजर का वक्त न हो जाए। तो मेरे भाइयों, ये सही रिवायत सही बुखारी में मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला साल भर रात के आखिरी हिस्से में आसमानी दुनिया पर उतरता है। लेकिन ये शबे बारात मनाने वाले, ये 15वीं शाबान मनाने वाले बिला वजह कैद करते हैं कि अल्लाह सिर्फ शबे बारात को आसमानी दुनिया पर आता है। तो मेरे भाइयों, इसी तरह इस रात के मुताल्लिक या शबे बारात की हकीकत के मुताल्लिक हमारे मुसलमानों में एक गलत फहमी ये है कि इसमें हमारे मुसलमान ये अकीदा रखते हैं कि इस रात मरने वालों की रूहें घरों को आती हैं और घरों को आकर उनके जो मन पसंदीदा खाने हैं या वो जो जिंदा रहते हुए खाने की ख्वाहिश रखते थे वो घर आकर खाते हैं और वापस जो है कब्रिस्तान चले जाते हैं। बाज़ उलमा मज़ाहिया अंदाज में कहते हैं कि ये बेचारे नामो निहाद मुसलमान 15वीं शाबान को कब्रिस्तान की जियारत के लिए जाते हैं और वहाँ मदफून मुर्दे की रूहें उनके जो है घरों को आती है, न उनसे उनकी मुलाकात होती है न उनसे उनकी मुलाकात होती है। तो बहरहाल इनका क्या अकीदा है कि इस रात मुर्दों की रूहें अपने घरों को आती हैं और उनके मनपसंदीदा जो मिट्टे हलवे जो भी खाने की चीजें बनाई जाती हैं उन्हें खाते हैं, और अगर ये ना बनाया जाए तो उनकी रूहें दीवारों को चाट कर वापस जाती हैं। इतनी अफसोस की बात है, हमारे जो नामो निहाद मुसलमान जिन्हें इल्म नहीं है वो ये समझते हैं कि अरे मेरे फलां घर आए थे, शायद मैं अगर उनके लिए फला चीज नहीं बना के रखी तो दीवार चाट कर जाएंगे। है कि नहीं? सोचते हैं या नहीं सोचते? जिनके पास इल्म नहीं है वो लोग ऐसा जहन बना लेते हैं और फौरन चाहे कोई कहे या ना कहे बना कर रख देते हैं। क्यों? डर है हमारे मुसलमानों में। तो बहरहाल मेरे भाइयों ये बात याद रखें, कोई भी हो, चाहे नबी हो चाहे वली हो, जो भी इंसान इस दुनिया से चला जाता है दूसरी मर्तबा इस दुनिया में कभी भी वो जो है वापस नहीं आता। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिक्र करते हुए कहता है, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, कि जब उनके पास मौत का फरिश्ता आता है या उनकी मौत हो जाती है, वो अल्लाह के पास ले जाए जाते हैं तो देखते हैं कि उन्होंने दुनिया में कोई नेक अमल नहीं किया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहते हैं, लअल्ली अअमलु सालिहा, ऐ अल्लाह हमें वापस लौटा दे, शायद हम जाकर वो आमाल करके आए जो हम पहले नहीं कर सके हैं। ऐ अल्लाह हमें वापस भेज दे दुनियावी जिंदगी में। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, कल तरक्तु कल्ला, हरगिज नहीं तुम्हें दोबारा नहीं भेजा जाएगा। कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, कि वो सिर्फ उनकी मुंह की बात होगी कि वो वापस आएंगे या इस दुनिया में वापस आने की अल्लाह रब्बुल आलमीन से तलब करेंगे तो सिर्फ उनकी ये मुंह की बात होगी। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, इसलिए कि उनके और इस दुनिया के दरमियान एक बरज़ख है, एक दीवार है, क़यामत के दिन तक वो उस दीवार के पीछे रहेंगे।
تو میرے بھائیوں، ایک طرف اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ اس دنیاوی زندگی سے چلے گئے ہیں اور برزخ کی زندگی میں ہیں، کبھی بھی وہ اس دنیا میں لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یہ ذکر کون کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے۔ لیکن ہمارے نام و نہاد مسلمان کیا کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ہماری روحیں، ہمارے مرنے والے کی روحیں آتی ہیں، کھاتی ہیں، انجوائے کرتی ہیں اور واپس جو ہے لوٹ کر جاتی ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ شب برات کے متعلق غلط فہمیاں ہیں۔ پہلی غلط فہمی کہ اس میں فیصلے لکھے جاتے ہیں، جبکہ فیصلے رمضان میں لیلۃ القدر میں لکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح اس رات ہمارے مسلمان قبرستانوں کی زیارت کرتے ہیں، یہ بھی ایک بدعت ہے۔ اسی طرح ہمارے مسلمان اس رات خوب جاگ کر نمازیں پڑھتے ہیں اور اس کے دوسرے دن روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کی بدعت ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے مردے واپس لوٹ کر آتے ہیں، یہ بھی غیر مسلمین اور کفار جیسا عقیدہ ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارے، قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ برادران اسلام، جیسا کہ ہم اور آپ ماہ شعبان کی فضیلت کے متعلق سنا کہ اس کی فضیلت صرف ایک ہے اور وہ کثرت سے نفل روزے رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیک اعمال اس میں جو ہے صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ ایک دو حدیثیں صحیح وارد ہیں 15ویں شعبان کے متعلق، جس میں کسی عبادت کا ذکر نہیں ہے، کسی نیک کام کرنے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اب میں آپ کے سامنے وہ حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہد، کہ اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کو پوری مخلوق کی طرف نظر کرم کرتا ہے، پوری مخلوق کو دیکھتا ہے، فیغفر لجمیع خلقہ، اور پوری مخلوق کو معاف کر دیتا ہے، اپنے پورے بندوں کو بخش دیتا ہے سوائے دو بندوں کے، الا لمشرک او مشاہد۔ پہلا وہ بندہ ہے جو شرک کرنے والا ہے، دوسرا وہ بندہ ہے جو اپنے مومن بھائیوں کے متعلق اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، کینہ کپٹ رکھتا ہے۔ تو اگر آپ 15ویں شعبان کو اپنی مغفرت کرانا چاہ رہے ہیں تو شرک کے کاموں سے بچیں، اسی طرح اپنے دل کو صاف کریں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے متعلق۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنی پوری زندگی اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ الہ العالمین جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں صحت یاب کاملہ عاجلہ عطا فرما، الہ العالمین جو قرض دار ہیں ان کے قرضے کو آسانی سے ادائیگی کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔